الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة العنکبوت آیت نمبر 1 اور 2. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمین. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا مربی و پالنہار، نگہداشت و نگہدار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص ہم سب کے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی سرور کائنات جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز سامعین، حاضرین مجلس، آج کے اس دینی پروگرام میں ہم سب مسجد کے اندر اکٹھا ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہم کو حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات سننے اور ہم سب کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آج کے اس دینی پروگرام میں میں جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور آزمائشیں. صحابہ کرام کی زندگی میں بہت بڑی بڑی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور آفتیں آئیں، اور صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے ہر مصیبتوں کا سامنا کیا، ہر پریشانیوں کا سامنا کیا، اور ہر موڑ پر کامیاب اور کامرا رہے، اور اللہ رب العالمین نے آزمایا، ہر امتحانات میں کامیاب ہو گئے. اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے
کہ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان لے کر آئے ہو تو تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، امتحانات کے بھٹیوں میں، آزمائشوں کے بھٹیوں میں تمہیں ضرور تپنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا، آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے خیال کر لیا ہے، کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، آزمائے نہ جاؤ گے، مصیبت کے بھٹیوں میں تپائے نہ جاؤ گے، اس وجہ سے کہ تم ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے والے ہو، اسلام کے مطابق عمل کرنے والے ہو، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم آزمائے نہ جاؤ گے، آزمائشوں سے گزارے نہ جاؤ گے، یقیناً تمہاری آزمائش ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یقیناً تمہاری آزمائش ہوگی۔ اس خیال میں مت رہو کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، اہل مومن ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں، اسلام کے مطابق ہماری زندگی ہے تو ہم پہ آزمائش نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ نے کہا ایمان والے ہو تو آزمائش ہوگی، اور آزمائشوں کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش کے شکلوں کو بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 155 کے اندر ارشاد فرمایا، اور آزمائیں گے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کریں گے، دشمنوں کا خوف تم پر ڈال کر، دشمنوں کا خوف تم پر ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش کی شکلیں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ کن لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ دشمنوں کا خوف اور دہشت ڈال کر، خوف و ہراس میں ہم تمہیں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک و پیاس سے مبتلا کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں ہم کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، نوکر چاکر ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری فیکٹری کے اندر کام کر رہے تھے، اچانک کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کاروبار کے اندر گھاٹا لگ جائے گا، ہم اس کے ذریعہ بھی تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری پیداوار میں، تمہارے پھلوں میں ہم کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ جو تم پیداوار کرتے ہو، گلے اگاتے ہو، یا پھل ہے جو تم زمین سے، جو پیڑ میں اللہ رب العالمین پھل کو پیدا کرتا ہے، اس میں بھی ہم کمی کر کے تمہیں آزمائش کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ یہ تمام مصیبتوں کے آ جانے کے بعد، پریشانیوں کے آ جانے کے بعد، جو اللہ کا نیک بندہ اور ایمان لانے والی بندیاں، جتنے بھی مومن ہیں، اسلام والے ہیں، تمام مصیبتیں آ جانے کے بعد، پریشانیوں کو آ جانے کے بعد، ان پریشانیوں کو صبر کے ساتھ اور صبر پر ڈٹے رہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور پریشانی کو جھیلتے رہے، اور اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے، بشارت سنا دیجئے۔ تو بتایا میں رہا تھا کہ آزمائشوں کی بڑی بڑی شکلیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کئی آزمائشوں میں مبتلا کر کے
इम्तिहान लेगा, जांचेगा, परखेगा। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को जांचा और परखा। इब्तिदाई इस्लाम का जमाना है, मक्का में धीरे धीरे इस्लाम फैल रहा है। सहाबा किराम को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कहीं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे और उमैया ने यह सजा अख्तियार कर रखा था कि जब मक्का के अंदर धूप तेज होती थी, मक्का का इलाका रेतीला इलाका है, धूप होती है तेज, जब शिद्दत की धूप हो जाती, दोपहर में चिलचिलाती हुई धूप, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गरम रेत पर लेटा दिया जाता था और सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता था और कहा जाता था कि अल्लाह के साथ नाफरमानी करो, अल्लाह के साथ कुफ्र करो, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हालत में ये कह रहे थे और कहते थे, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और यही नहीं बल्कि जालिमों ने ये सजा अख्तियार कर रखा था कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंजीरों में बांधकर, जंजीरों में डालकर मक्का के रेतीले जमीनों पर घसीटा जाता था। लेकिन ये परेशानी और मुसीबत आने के बाद भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के तौहीद को नहीं छोड़ा, अल्लाह के ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान पर जमे रहे, ईमान पर साबित कदम रहे। और आगे चलिए, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। इनका नाम पहले अब्दुल उज़्ज़ा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लक़ब जो दिया, ज़ुल बिजादैन का लक़ब दिया, दो चादरों वाले। ज़ुल बिजादैन का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया, दो चादरों वाले। इनका वाक़या क्या है, ये देख लेते हैं। मक्का के अंदर है हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं। चचा को मालूम चला, चचा के यहाँ, चचा की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, चचा मुशरिक था। जब चचा को मालूम चला कि मेरा भतीजा ईमान के अंदर दाखिल हो गया है, अल्लाह पर ईमान ले आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अख्तियार कर लिया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी तस्लीम कर लिया है, तो चचा ने परेशान करना चालू कर दिया, ज़द-ओ-ख़ौफ़ करना चालू कर दिया और कहा है, मेरे भतीजे, तू ईमान के अंदर दाखिल हो गया है और तुझे ये मालूम नहीं कि जो कुछ तू कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हमारे ही बदौलत, हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है और तेरी हालत बड़ी खराब है, जिस्म पर तेरे जो कपड़े हैं ये मेरे दिए हुए हैं, तू सोच समझ ले। मेरे अजीज मुसलमानों, ये बताना चाह रहा हूं कि सहाबा किराम को हर तरीके से मुसीबतें आई, परेशानियां आई, सहाबा किराम हर मुसीबत में कामयाब होते रहे। ईमान की ताकत थी, अल्लाह पर भरोसा था। चचा ने कहा कि भतीजे सोच ले, समझ ले, वरना ये तेरा तमाम चीजें चली जाएंगी, अभी तू ईमान से फिर जा, अभी तेरे लिए वक्त है। वरना चचा ने धमकी दिया कि नौकरी भी तेरी चली जाएगी और जिस्म पर तेरे जो कपड़े हैं ये मेरे दिए, ये भी उतारने तुझे पड़ेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ मेरे चचा जान, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐ मेरे चचा जान, मैं ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता, इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने के लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं
उतार दूंगा। ये जिस्म पर जो तुम्हारे पैर में ये जूता है ये भी मेरा दिया हुआ है, ऐ मेरे भतीजे जूता भी उतार दे, अमामा भी उतार दे, जो पगड़ी अपने सर पे तू बांधा हुआ उसको भी उतार दे। हैदर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा उसको भी उतार दिया, जूते को भी उतार दिया, अमामे को भी उतार दिया। कहा मेरे भतीजे, चचा ने कहा है मेरे भतीजे कमीज को भी उतार दे। हैदर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमीज को भी उतार दिया। ये मुसीबतें परेशानियां क्यों आ रही है? ईमान में दाखिल होने की वजह से। इस्लाम ले आए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया था, और चचा चाहता था कि हमारी मजहब पे रहे यानी मुशरिक रहे, कमीज भी उतार दिया। ईमान देखिए कितना पुख्ता था सहाबा किराम का। अब इज़ार उतारने की बात आ गई, तहबंद उतारने की बात आ गई, यहां तक तो हर इंसान चलाऊ कर सकता है, मर्द यहां तक तो झेल सकता है। अगर कमीज जिस्म पे ना हो तो इतना तो चलाऊ हो सकता है कि बेशर्मी नहीं होगी, लेकिन अब इज़ार खुलने की बात आ गई, इज़ार से तो बिल्कुल इंसान बेपर्दा हो जाता है। हैदर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐ मेरे चचा जान, इतना मुझे मोहलत दे दीजिए, इज़ार मेरा मत उतरवाइए, मैं नंगा हो जाऊंगा, बिल्कुल बरहना हो जाऊंगा। इतना हमें मौका दे दीजिए कि मैं अपने घर जाऊं और जाकर कोई कपड़ा ले आऊं, कोई चादर ले आऊं जिससे अपनी शर्मगाह को मैं ढांप लूं, फिर मैं ये भी कपड़ा वापस कर देता हूं। चचा ने कहा एक शर्त है, जितनी देर के लिए मैं तुझे टाइम दे रहा हूं उतनी देर के लिए तू अल्लाह और उसके रसूल के बारे में गलत बात कहा, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में गलत जुबान निकाल। हैदर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ऐ चचा ये हरगिज नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। हैदर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन इज़ार को भी उतार दिया, बिल्कुल बरहना हो गए। ईमान देखिए प्यारे मुसलमानों, सहाबा किराम का कितना जबरदस्त ईमान था, बिल्कुल बरहना हो जाते हैं। हैदर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। आप गौर करें, सोचे कोई शख्स अच्छे तरीके से रह रहा हो, बेहतरीन तरीके से रह रहा हो, और अचानक वो नंगा हो जाए, बरहना हो जाए, तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे या तो वो मजनू, पागल या दीवाना हो गया है। यही लोग सोचेंगे ना कि वो मजनू, पागल, दीवाना हो गया है। कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल बरहना हो गए, नंगे हो गए, और उसी हालत में अपने घर पे जाते हैं। अपने घर पे जाते हैं, रास्ते में कहते हुए जाते हैं ऐ लोगों अब मैं मोमिन हो गया, ऐ लोगों अब मैं मोमिन हो गया, अब मैं मोमिन हो गया। ईमान के लिए अपने जिस्म के कपड़े तक को भी उतार दिया, लेकिन ईमान से कोई समझौता नहीं किया, ईमान से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हैदर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पे पहुंचते हैं, मां भी मुशरिका थी। मां ने देखा कि बेटा बरहना नंगा है। कहा है मेरे बेटे ये क्या हाल तेरे साथ हो गया, तेरे जिस्म के कपड़े कहां गए? कहा है अम्मी जान, तेरे देवर ने मेरे साथ ये सुलूक किया है। कहा क्यों मेरे देवर ने ऐसा तेरे साथ किया? कहा मैंने ईमान को कबूल कर लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मैंने अख्तियार कर लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं ईमान लेकर आया हूं, इसी वजह से मेरे साथ ये सुलूक किया गया है। माँ भी मुशरिका थी, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसने घर में से एक चादर फेंक दिया, एक चादर फेंक दिया, और माँ ने कहा यहां से चले जाओ, घर से चले जाओ तुम यहां से, मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए कि मां भी मुशरिका थी। हैदर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी चादर को दो टुकड़े किए, और एक टुकड़े से अपने इज़ार को बंद किया, और एक टुकड़े को अपने जिस्म के ऊपरी हिस्से कंधे पर रखा, और इसी हालत में मदीना के अंदर रवाना हो जाते हैं, मदीना की तरफ चले जाते हैं। मदीना में पहुंचते हैं, मस्जिद नबवी में
पहुंचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से मुखातब होकर कहते हैं, दीगर सहाबा से मुखातब होकर कहते हैं, ये हज़रत अब्दुल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर उनके नाम को तब्दील किया। उनका नाम इस्लाम लाने से पहले अब्दुल उज़्ज़ा था, बुत का बंदा, उज़्ज़ा का बंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला नाम रखा, अल्लाह का बंदा। और वहीं पर आपने ये भी लक़ब दिया, ये ज़ुल्बिजादैन है, दो चादरों वाले हैं। आपने लक़ब दिया, ज़ुल्बिजादैन का लक़ब दिया, दो चादरों वालों का लक़ब दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये है कि अब्दुल्ला है जिन्होंने ईमान के लिए, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। कितना बड़ा मकाम सहाबी ने हासिल किया। और ये देखना है कि अपनी नौकरी को छोड़ दिया, अपने घर को, अपने मकान को, यहां तक कि जिस्म के कपड़े को भी उतार दिया, लेकिन अपने ईमान को सलामत कर लिया, अपने ईमान को बचा लिया। यही असल कामयाबी है। तो प्यारे मुसलमानों, बताने का मकसद ये है कि ईमान लाए हो तो आजमाइश जरूर होगी, इम्तिहान जरूर होगा, और उस इम्तिहान में कामयाब और कामयाब होना है और ईमान पर मजबूती के साथ जमे रहना है। अगर ईमान लाए हो, अल्लाह ने कहा है, तो आजमाइश जरूर होगी, इम्तिहान जरूर होगा। और आगे चलिए, है कि खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अभी इस्लाम का इब्तिदाई जमाना है, सहाबा कराम को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कि खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास चादर का तकिया लगाकर आराम फरमा रहे थे। खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं, कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जालिमों को, हिला को बर्बाद कर दे, निस्तो नाबूद कर दे, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, आप पर ईमान लाने वाले हैं, आपके तरीके पे अमल करने वाले हैं। अल्लाह के नबी, उनको जालिम बड़ा सता रहे, परेशान कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है खब्बाब बिन अर्त, ये ईमान का रास्ता है। मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बर्दाश्त करो, झेलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की वो रिवायत, वो हदीस आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा, है खब्बाब बिन अर्त, अभी से तुम घबरा गए, परेशान हो गए। तुमसे पहले के लोग जो इस दुनिया में आए, और जो पहले के लोग, जो नेक लोग आए थे, और नबियों के जमाने में वो लोग जब ईमान लाते थे और ईमान के रास्ते पे जब चलते थे, और उस जमाने के जो जालिम लोग हुआ करते थे, उनको सजा देने का ये तरीका अख्तियार कर रखा था जालिमों ने, कि ईमान वालों के लिए जमीन में गड्ढे खोद दिए जाते थे, और उसी गड्ढे में उनको खड़ा कर दिया जाता था, और कहा जाता था, ईमान के रास्ते से हट जाओ, इस्लाम के रास्ते से हट जाओ, वरना आरे से तुम्हें चीर दिया जाएगा। लेकिन ईमान वाले ईमान से नहीं हटते थे, इस्लाम से नहीं हटते थे, और उनको आरे से चीर दिया जाता था। और यही नहीं, बल्कि लोहे के कंधियों से ईमान वालों के गोश्तों को नोच लिया जाता था, जो तुमसे पहले ईमान वाले थे। लेकिन उनके ईमान और इस्लाम में जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता था। ईमान के रास्ते में शहीद हो जाते थे, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते थे, लेकिन इस्लाम से कोई कंप्रोमाइज और समझौता नहीं करते थे। ऐ खब्बाब बिन अर्त, घबराओ ना, ये ईमान का रास्ता है, परेशानी और मुसीबत जरूर आएगी। एक सहाबी का वाकया और देखिए, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला, बड़े ही अमीर घराने के सहाबी, पैसा बहुत, दौलत बहुत। अहले सीरत ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है कि
کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو خوشبو لگا کر مکہ میں چلتے تھے تو وہ گلی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی تھی اور بڑے ہی الگ قسم کا خوشبو لگاتے تھے. لوگ یہ سمجھ جایا کرتے تھے جس گلی سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا تھا کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. اور کپڑا یمن اور شام سے بن کے آتا تھا. مخصوص قسم کا کپڑا پہنتے تھے. یمن اور شام سے کپڑے اور جوتے آیا کرتے تھے. مخصوص قسم کا عطر اور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. اتنے اعلیٰ گھرانے کے اور اتنے مالدار گھرانے کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسلام سے پہلے کی زندگی ان کی اس طریقے سے تھی. لیکن جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں, اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیتے ہیں, تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا ظلم و ستم آ جاتا ہے, بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں. گھر کے ہی لوگوں نے, چچا نے اور ماں نے آپ کے کپڑے کو بھی چھین لیا, آپ کی ٹھاٹھ باٹ کو, تمام چیزوں کو چھین لیا گیا. اور حدیث کے اندر آتا ہے اس طریقے سے آپ کے چمڑیاں ادھڑ گئی جس طریقے سے سانپ کیچڑی چھوڑتا ہے, اپنے کپڑے کو تبدیل کرتا ہے. اسلام لانے کے بعد جسم پر کیا ہے؟ ٹاٹ کا لباس ہے, گورے کا لباس ہے. اور اسلام سے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ ملک شام اور یمن سے مخصوص طریقے سے کپڑا آیا کرتا تھا, اعلیٰ قسم کا خوشبو لگایا کرتے تھے. لیکن گھر والوں نے تمام نعمتوں کو چھین لیا, عیش و عشرت کو چھین لیا, اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, اسلام کو قبول کر لیا, سب کچھ قربان کر دیا. صرف ٹاٹ کا لباس ہے اور معمولی لباس پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اپنی تمام عیش و عشرت کو قربان کر دیا. آج حال یہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ٹاٹ کا لباس ہے, گورے کا لباس ہے. یہ تھی صحابہ کی زندگی. صحابہ کرام نے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, تمام عیش و عشرت کو قربان کر دیا. آج تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ صبح ناشتہ بھی کرتے ہیں, دوپہر میں کھانا بھی کھاتے ہیں, شام میں بھی کھانا کھاتے ہیں, اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی بڑی تنگیوں کے اندر تھی, لیکن ان تنگیوں کی حالت میں, پریشانیوں کی حالت میں صحابہ کرام نے ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا, ایمان سے, اسلام سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں, بڑا اہم واقعہ ہے. اللہ کے نیک بندیوں کا ایمان اور اللہ کے نیک بندوں کا ایمان کتنا زبردست ہوتا ہے. فرعون کے گھر میں ایک خادمہ تھی, ایمان والی. اللہ پر ان کا ایمان بڑا زبردست تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی, اسراء اور معراج کا جب واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک بڑا اہم خوشبو کو آپ نے محسوس کیا. اللہ رب العالمین نے وہ خوشبو آپ کو سبھایا, محسوس کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل امین یہ خوشبو کون سی ہے؟ اے جبریل امین وہ خوشبو کون سی ہے؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرعون کے گھر میں رہنے والی خادمہ جو ایمان والی تھی اور ان کے بچوں کی خوشبو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا واقعہ کیا ہے, ان کا واقعہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک عورت کا, صالحہ عورت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو وہ نیک عورت, صالحہ عورت کنگھی کر رہی تھی. کس کو؟ فرعون کی بیٹی کو. اچانک کنگھی زمین پہ گر جاتی ہے. وہ اللہ کی نیک بندی, وہ اللہ کی صالحہ بندی جب کنگھی کو
जमीन से उठाती है तो कहती है बिस्मिल्लाह, शुरू करती हूं अल्लाह के नाम से। नेक औरत ने क्या कहा, सालिहा औरत ने क्या कहा, शुरू करती हूं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह कहा। बेटी ने कहा कि किसका नाम तुम ले रही हो? फिरौन की बेटी ने कहा किसका नाम ले रही हो? मेरे अब्बू का नाम नहीं ले रही हो। इसलिए कि फिरौन अपने आप को रब कहलवाता था, लोगों से, अपने रियाया से कहता था मुझे रब कहो। उसने एक औरत ने, पाक औरत ने, अल्लाह की नेक बंदी ने, सालिहा बंदी ने कहा मैं उसको रब मानती हूं जो मेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है और सारे जहान का रब है। जिसने सारी कायनात को पैदा किया, सबको पैदा किया, उसको मैं रब मानती हूं, तेरे अब्बू को मैं रब नहीं मानती। कहा अच्छा मैं अपने अब्बू से शिकायत कर दूंगी, ये खादिमा आपको रब नहीं मानती है। कहा जाओ शिकायत कर दो अपने अब्बू से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ अपने अब्बू से शिकायत कर दो। बेटी जाती है फिरौन से शिकायत करने, फिरौन के पास ये बात पहुंचती है, ये बात जाती है। फिरौन बुलाता है, नेक और सालिहा औरत को फिरौन बुलाता है, खादिमा को बुलाता है, और बताओ मेरी बेटी ऐसी बात तुम्हारे बारे में कह रही, क्या बात है, तुम मुझे रब नहीं मानती हो? उसने, एक औरत ने वही बात कही कि मैं रब उस रब्बुल आलमीन को मानती हूं जो सारे जहान का रब है, जो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कहा अच्छा मुझे रब नहीं मानती हो तो मामला तुम्हारे साथ ये होगा, सोच समझ लो, तुम्हारे बच्चों का साथ है, तुम्हारी भी जान है, तुम्हारे साथ में क्या सलूक करने वाला हूं, क्या बर्ताव करने वाला हूं, अभी सोच लो, वरना तुम्हारी जिंदगी मैं खत्म करवा दूंगा, तबाह बर्बाद करवा दूंगा, वरना ईमान से हट जाओ, मुझको रब मान लो। फिरौन ने कहा, नेक और सालिहा औरत ने कहा हरगिज़ तुम मेरे रब नहीं हो सकते, रब तो रब्बुल आलमीन है। फिरौन ने गुलामों को हुक्म दिया और गुलामों को हुक्म दिया तांबे की कड़ाही मंगाई गई और उसमें तेल को गरमाया गया। जब शदीद तेल खौलने लगा, गर्म हो गया, देखिए मौत सामने है, और एक तरफ मौत है और एक तरफ ईमान है, लेकिन अल्लाह की नेक बंदी ने जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया, अपने बच्चों को भी शहीद अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, लेकिन ईमान से सौदा नहीं किया, ईमान से कंप्रोमाइज नहीं किया। फिरौन ने कहा देख लो, इसी में तुम्हारे साथ ही सलूक किया जाएगा, अंजाम यही होगा तुम्हारा, अभी वक्त है, पलट जाओ। कहा ये हो नहीं सकता। ईमान देखिए, सुभान अल्लाह, कितना पक्का ईमान था। नेक सालिहा औरत ने कहा ऐ फिरौन, एक गुजारिश है, मेरे बच्चों और मेरी हड्डियों को एक ही कब्र में दफन कर देना, कपड़े में लपेट कर एक ही कब्र में दफन कर देना। एक एक करके बच्चों को तेल के कड़ाहे में डाला गया, आंखों के सामने बच्चे जल रहे, भुन रहे। बच्चों को जब डाल दिया गया, एक बच्चा ऐसा था जो दूध पीने वाला बच्चा था। दूध पीने वाले बच्चे से मां को कितनी मोहब्बत होती है, उल्फत होती है, सारे बच्चों से मोहब्बत होती है, लेकिन खास तौर पे मां उस बच्चे से और ज्यादा मोहब्बत करती है जो दूध पी रहा होता है, वो बच्चा या बच्ची। जो बच्चा था उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मां मोहब्बत में अपने कदमों को पीछे हटा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से वो प्यारा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, अय्यामे तिफली में जो अभी दूध पी रहा था, अभी चंद अय्याम का था, बोल उठा। हदीस के अल्फाज है, अहमद इब्न हिब्बान के अंदर ये रिवायत मौजूद है और इसकी सनद कवी और मजबूत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो प्यारा बच्चा बोल उठा जो दूध पीता हुआ था, या उम्मह इत्तहिमी फइन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। ऐ अम्मी जान छलांग लगा दे, ऐ अम्मी जान तेल के कड़ाहे में छलांग लगा दे,
मासूम बच्चा, जो दूध पीता हुआ बच्चा बोल उठा। हमारे यहाँ बच्चे कितने दिनों में बोलते हैं? 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो साफ सुथरी आवाज में बोलने लगता है। लेकिन वो बच्चा, वो ऐसा बच्चा था जो चंद महीने का था, चंद अय्याम का था। हदीस के अंदर कोई मुतअय्यन तादाद में दूध पीता हुआ बच्चा था, चंद अय्याम और चंद महीने का था। वो बच्चा बोल उठा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चा बोल उठा कि अम्मी जान छलांग लगा दो, ये दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब के मुकाबले में बड़ा हल्का है। मेरे अजीज मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, गौर करो, वो सालिहा और नेक बंदी थी अल्लाह की, जिन्होंने ईमान से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, ईमान से कोई समझौता नहीं किया और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा मकाम अता किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज कराया गया तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में खुशबू को अल्लाह ने महसूस कराया। ये कितना बड़ा मकाम है। तो बताने का मकसद और कहने का मकसद ये है, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। कहने का मकसद खुलासे कलाम ये है कि ईमान के रास्ते में सहाबा कराम को बड़ी तकलीफें आई, सहाबियात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन को बड़ी तकलीफें आई, अल्लाह के नेक बंदों को बड़ी तकलीफें आई। लेकिन तकलीफों को आ जाने के बाद उन्होंने ईमान से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, ईमान के अपने कदम को जमाए रखे और ईमान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के ईमान को उसी तरीके से बना दे जिस तरीके से सहाबा कराम का ईमान था। ऐ रब्बुल आलमीन उस तरीके से ईमान हम सब का बना दे जिस तरीके से तेरे ऐ अल्लाह नेक बंदों का ईमान था। ऐ अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरीके को जिंदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।